السلام علیکم، میں ہوں محمد ندیم صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہمارے ساتھ ایک نوجوان جدید لب و لہجے کے شاعر میر علی موجود ہیں۔ ہم جانیں گے ان کے شعری سفر کے حوالے سے۔ میر علی انگریزی ادب کے طالب علم ہیں۔ انگریزی اور اردو ادب جو ہے دونوں سے گہری دلچسپی رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ تنقید تحقیق کو بھی خوب جانتے ہیں، اور فلسفہ، تہذیبیں، تاریخ، ان علوم سے بھی خاص دلچسپی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ کس طرح اس کو مینج کر رہے ہیں، اور شعری حوالے سے ان کا نقطہ نظر کیا ہے، وہ آج ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے لیے آپ یہ بتائیں کہ آپ انگریزی ادب کی طرف کس طرح آئے، اور شاعری کا انتخاب اور شعر کی طرف آپ کیسے راغب ہوئے؟ سب سے پہلے تو سر بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور مجھے وقت دیا کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے انگریزی کے بارے میں، تو میرا یہ ذاتی نقطۂ نظر ہے کہ ادب ادب ہوتا ہے، وہ چاہے کسی کی زبان کا ہو، لیکن مجھے خاص طور پر گہری دلچسپی تھی ویسٹ کے ادب کو پڑھنے کی۔ اس کی وجہ شاید ہمارے ہاں یہ بھی ہوتی ہے کہ کچھ سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں، اور اب میرا نقطۂ نظر بالکل مختلف ہے۔ پہلے مجھے ایسا لگتا تھا کہ انگریزی شاعری اردو شاعری سے بہت آگے ہے، اور ہمارے مشرقی جتنی بھی زبانیں ہیں ان کی شاعری سے بہت آگے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے انسان میں ایک شوق پیدا ہوتا ہے ان کو پڑھنے کا، ان کو جاننے کا۔ تو میرا بھی یہ خیال ہے کہ انگریزی ادب کی طرف آنے کی ایک تو یہ وجہ تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ چونکہ ہمارے ہاں ظاہری بات ہے انگریزی کو وہ مقام حاصل ہے، انگریزی زبان کو، جو مطلب ایک پڑھے لکھے بندے کو پڑھنی چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک پڑھا لکھا بندہ جو وہی ہوتا ہے جو انگریزی جانتا ہے، تو وہ بھی پرسیپشنز ہمارے ذہنوں میں موجود ہوتی ہیں ان کو پڑھنے کی۔ تو یہ ایسی وجوہات تھیں۔ اس ٹائم تو میں اتنا میچور نہیں تھا کہ کیا میرے ذہن میں تھی، میں نے کیوں رکھا۔ البتہ بس میں اتنا ہی جانتا ہوں کہ ادب کو میں پڑھنا چاہتا تھا۔ اردو ادب چونکہ گھر میں موجود تھا، ہم نے اس کو کچھ نہ کچھ پڑھا ہوا تھا، تو مجھے اس ٹائم جو سب سے قریب جو سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد یعنی کہ کیریئر پوائنٹ آف ویو سے بھی اور لٹریچر پوائنٹ آف ویو سے بھی مجھے انگریزی ادب سب سے زیادہ بہتر لگا، اور میں نے اس کو چن لیا بطور سبجیکٹ۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ اور آپ کی طبیعت میں نے سن رکھا ہے کہ آپ وسیلے بہت تھے اور غصے بھی تیز تھے۔ تو آپ کی طبیعت میں یہ جو اعتدال آیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے شاعری اور ادب کا ہاتھ ہے؟ بالکل میں سمجھتا ہوں، بالکل ہاتھ ہے ادب کا۔ اس کے علاوہ کچھ عمر کا بھی عمل دخل ہوتا ہے کہ ایک خاص عمر میں انسان اس میں اور مزاج، اس کے اندر اور مزاج، اس کا مزاج ہوتا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کا مزاج بدل جاتا ہے۔ تو البتہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاعری اور ادب جو ہیں وہ انسان کے اندر اعتدال لے کر آتے ہیں اس کے مزاج میں۔ میرا خیال ہے ادب ہی نہیں، ہر جی سبجیکٹ کا بالکل، شخصیت پہ نہیں اثرات کچھ ہوتے ہیں۔ کچھ سبجیکٹ تو انسان کو مزید اس کے مزاج کو بگاڑ بھی دیتے ہیں۔ نہیں، اثرات تو ہوتے ہیں نا، کچھ جیسے کیمسٹری والوں کو بڑا خوش ہاں جی مزاج ہاں جی کیا بالکل، جاتا میں وہی کہنا ہے۔ چاہ رہا تھا، کچھ مزاج کو بگاڑ بھی دیتے ہیں۔ البتہ میرا یہ خیال ہے کہ ادب، خاص طور پر ادب، تاریخ اور جو اس طرح کے سبجیکٹ ہیں جو ہیومینٹیز کے سبجیکٹ ہیں، وہ انسان میں اعتدال لے کر آتے ہیں اور اس کی سوچ کو بھی وسیع کرتے ہیں۔ جی بالکل۔ اچھا، میں اگر آپ سے پوچھوں کہ میر علی کے پسندیدہ شاعر کون ہیں اردو کے اندر، اگر پوچھوں کلاسیکی اور جدید دونوں میں، نظم اور غزل کے، تو یہ کون سے آپ جی، نام لیں گے؟ کلاسیکی اردو شاعری میں مجھے غالب تو پسند ہے، لیکن غالب سے زیادہ مجھے میر پسند ہے، میر تقی میر مجھے ان سے زیادہ پسند ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جدید شاعری کی جہاں تک بات ہے تو اس میں مجھے ثروت حسین اور ایک شاعر ہیں، زیادہ معروف تو نہیں ہیں، مقبول عامر، ان کی کتاب میں نے پڑھی، چونکہ ایک ہی کتاب ہے ان کی، تو وہ بھی مجھے بہت اچھے لگے۔ ان کا جو لب و لہجہ ہے، ان کا جو اسلوب ہے۔ اس کے علاوہ میں نے دیگر شاعروں کو پڑھا ہے، لیکن ثروت حسین میں اس لیے کہوں گا کہ جدید شاعری میں مجھے سب سے زیادہ ثروت حسین میں متاثر۔ میر کے پسند کی خاص وجہ ہے؟ میر کے پسند کی خاص وجہ ایک تو یہ ہے کہ وہ عام فہم ہے، ایک جو بات ہے یہ ایسا ہے کہ اس کی جو ڈکشن ہے وہ سادہ ہے۔ البتہ ایک اور چیز غلط فہمی بھی کہہ سکتے ہیں عوام میں کہ میر جو ہے وہ صرف محبت کا شاعر ہے یا صرف غم کا شاعر ہے، تو میں اس چیز سے اختلاف کرتا ہوں۔ میرا یہ خیال ہے کہ میر کے ہاں بھی وہ اشعار موجود ہیں جو غالب کے ہاں موجود ہیں، بلکہ یہاں مجھے ایک جملہ یاد آ رہا ہے
शम्स रहमान फारूकी साहब का, जो उन्होंने लिखा है शेर शोर अंगेज में, कि वो कहते हैं कि वो सब गालिब के यहाँ जो चीज़ें मौजूद हैं वो सारी मीर के यहाँ भी मौजूद हैं, लेकिन जो मीर के यहाँ चीज़ें मौजूद हैं वो गालिब के यहाँ मौजूद नहीं है। यानी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ मीर के यहाँ मौजूद हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि मीर जो है वो गालिब गालिब ने बहुत सी चीज़ें मीर से ली हैं, लेकिन मीर एक ऐसा शायर है जो वाकई एक बहुत बड़ा शायर कहलाने के लायक है। जी, मीर एक बड़ा शायर है, यकीनन खदाए सुखन कहा जाता है। लेकिन डॉक्टर फरमान फतेहपुरी ने लिखा है कि मीर को पढ़ने के लिए लुगत की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। ऐसे ऐसे जी शेर बिल्कुल। भी हैं, बाद बात तो हमें समझ नहीं लगती कि जी मीर बिल्कुल, से आप बहुत से कहना बहुत से चाहते ऐसे हैं। शायर हैं, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, ये तो है गज़ल के हवाले से आपने कहा, तो जदीद नज़्म में अगर आपके पसंदीदा शुअरा का नाम नज़्म पूछा में जाए। जो हमारे बुनियाद रखने वाले हैं उसमें मीरा जी हैं, मजीद अमजद हैं, नून मीम राशिद हैं। तो मतलब मुझे राशिद के यहाँ चूँकि हमारी रिवायत में गज़ल सबसे ज़्यादा मजबूत रही है शायरी में, तो गज़ल का रंग उनके यहाँ भी मौजूद रहता है, उनकी जदीद शायरी में भी। तो मुझे सबसे ज़्यादा जो मुतासिर किया है जदीद नज़्म में, इब्तदाई जदीद नज़्म में, वो नून मीम राशिद ने किया है और उसके बाद मजीद अमजद ने। और जहाँ तक अभी जो हमारे यहाँ इस वक्त नज़्म लिखी जा रही है अहद हाज़िर में, तो उसमें डॉक्टर वहीद साहब हैं, वहीद अहमद साहब, उनके साथ साथ अनवार फितरत एक शायर हैं, रावलपिंडी में होते हैं, और इसी तरह अरशद मिराज और अली मोहम्मद फर्शी, इस तरह के शोरा, ये सब नज़्म के बहुत अच्छे शोरा हैं इस वक्त। जी, और अंग्रेजी अदब में आपने किन शुअरा को पढ़ रखा है और कौन से जी, आपको ज़्यादा मुतासिर किए? मैंने तकरीबन हमारे यहाँ जितने शोरा मौजूद हैं सिलेबस में भी पढ़ा है, उससे हटकर भी उनको पढ़ा है। तो क्लासिकी अंग्रेजी अदब इतना कुछ खास नहीं है, जो अगर मैं सच्ची बात बताऊँ तो मुझे अपना मैं एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। तो मिल्टन उसमें एक शायर है जो बड़ा शायर कहलाने के लायक है, और वाकई वो बड़ा है। अच्छा, उसके अलावा जो हमारे यहाँ उसके बाद जो शोरा हैं उसमें जॉन डन मेटाफिजिकल पोइट्री का एक ग्रुप का एक शायर है, जो उस टाइम जिसको उस तरह पजीराई नहीं मिली बल्कि उसको रिजेक्ट किया गया। बाद में उसको उसकी शायरी को कबूलियत मिली और उसको उसके स्टाइल को एक्सेप्ट किया गया। तो मेरा ये ख्याल है कि जॉन डन ने मुझे बहुत ज़्यादा मुतासिर किया। उनके यहाँ जो मुख्तलिफ कंपेरिजन हमें मिलते हैं, यानी मैं यहाँ मिसाल देता चलूँ कि हमारे यहाँ मच्छर शायरी में आपने कभी नहीं सुना होगा कि मच्छर की या मक्खी की मिसालें भी मौजूद हैं। तो वो ऐसी ऐसी शायरी में चीज़ें लेकर आता है जो आपको पहले तो आप परेशान हो जाएं कि क्या कैसा कंपैरिजन कर रहा है, ये कैसा मुवाजना कर रहा है चीज़ों के दरमियान, लेकिन वो एक नया स्टाइल है जो मॉडर्न शायरी में उसको एक्सेप्ट किया गया। ये सीरियल ने ऐसे ऐसे कंपैरिजन्स किए, ऐसे कंसीव्स यूज़ किए। तो इकबाल के यहाँ जो मकड़ा और मक्खी जी का जी, तस्वर है, ये भी शायद ये भी वेस्ट से है। वही ये वैसे ये से। नज़्म मेरे ख्याल में तर्जुमा है, और ये वेस्टर्न एक पॉइंट का तर्जुमा है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। हाँ जी, उसी से ये जी बच्चों की जितनी भी हाँ जी नज़में हैं ये सारी उसी अदब से माखूज जी। हैं। वो और बल्कि वो जी जो है पहाड़ और गिलहरी, वो हाँ गाय जी, और बकरी, बिल्कुल, ये ये सब सारी तराजू नज़में ही जो है हैं। वहाँ से और ही इसके अलावा अगर 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 मैं आगे चलूँ तो उसमें रोमांटिक पोइट्री को मैं रोमांटिक पोइट्री का जो दौर है उसको मैं समझता हूँ कि वो शायरी के हवाले से, अंग्रेजी शायरी के हवाले से सबसे अहम दौर है, जिसके अंदर वर्ड्सवर्थ जैसा, कॉलरिज जैसा और कीट्स जैसे शायर मौजूद हैं। तो उसमें मुझे वर्ड्सवर्थ को सबसे ज़्यादा पढ़ने का इत्तेफाक हुआ है, तो मुझे वर्ड्सवर्थ वाकई ही एक बड़ा शायर नज़र आया। और उसके यहाँ वो एक खास रंग है जो आपको नेचर के करीब करता है। अगर आप नेचर के करीब नहीं भी हैं तो आप वर्ड्सवर्थ को पढ़ने के बाद अपने आप को नेचर के करीब महसूस करते हैं। नेचर के हवाले से तो उसका एक खास जी किस्म का तस्वर है, आप रेन जी नज्म है, बिल्कुल, छोटी छोटी चीज़ों पे उसकी पूरी पूरी नज़में हैं। अगर अब ये बाहर अगर कोई कोयल, हमारे यहाँ तो कोयल है, वहाँ पर चूँकि नाइटिंगेल होता है तो नाइटिंगेल पर नज़में हैं, इसी तरह कुकू पर पोइम्स उसकी हैं, इस तरह मुख्तलिफ परिंदों पर, मुख्तलिफ दरख्तों पर, फूलों बारिश पर, पर। जी बारिश पर, और छोटी छोटी चीज़ों पर आपको नज़में मिलती हैं और वो आपको कुदरत के करीब ले जाती हैं। और मेरा ख्याल है सिर्फ वो नज़में नहीं है, बल्कि वो एक पूरी फीलिंग्स, पूरा बिल्कुल, एहसास, और उनको चूँकि एक खास रोमांटिक नुक्ता नज़र से जी, देखता है वो। रोमांटिक शायरों के यहाँ एहसास को ज़्यादा तरजीह दी गई बजाय इंटेलेक्ट के, और उनके तो उसमें उसमें शामिल था ये कि एहसासात को तरजीह दी जानी चाहिए। तो वो इसमें कोई शक नहीं कि जब हम उनकी नज़में पढ़ते हैं तो हमारे हमारे अंदर एक ख़ास किस्म के एहसासात पैदा होते हैं, जिस तरह की वो नज़में होती हैं।
अच्छा, ये जहाँ तक उर्दू शायरी का ताल्लुक है या अंग्रेज़ी अदब से आपका ताल्लुक है, इसके साथ-साथ फ़लसफ़ा, तारीख़ ये तो थोड़ी-सी अलग नहीं, लाइन ही बन मैं जाती है। जी, बिल्कुल ऐसा समझा जाता है, लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि ये अलग नहीं है। जैसे चार्ल्स डार्विन का एक जुमला है इंसानी तारीख़ के बारे में, उसको मैं इसके साथ जोड़ूँगा। वो कहता है कि इंसानी तारीख़ एक दरख़्त के एक ट्रंक की तरह है, जो इसका तना होता है, जो ऊपर से तो मुख्तलिफ होता है जिसकी शाखी, लेकिन नीचे वो एक ही तने से जुड़ी होती है। तो मेरा ये ख़्याल है कि तमाम उलूम जो हैं वो नीचे जिनकी रूट है, जिनकी जड़ें वो एक ही जगह जाती हैं, और ये एक दूसरे को फैसिलिटेट करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं समझने में चीज़ों को। अच्छा, फ़लसफ़े के बारे में चूँकि आपने सवाल किया, फ़लसफ़े और तारीख़ के बारे में, मेरा ये ख़्याल है कि एक शायर जिसका तारीख़ का शऊर नहीं है या जिसने तारीख़ को नहीं पढ़ा, तो वो कभी भी एक बड़ा शेर तख्लीक़ नहीं कर सकता। मुमकिन है वो कर सके, लेकिन ज़्यादा इम्कानात यही हैं कि वो नहीं कर सकेगा। इसी तरह एक बंदे ने फ़लसफ़ा पढ़ा हुआ है, तो फ़लसफ़ा चूँकि आपको फ़लसफ़े का आगाज़ कहा जाता है कि शक से होता है, तो शक यानी ज़ाहिर बात है आपको बहुत सी चीज़ों में फैसिलिटेट भी करता है। आप जल्दी चीज़ों पर यकीन नहीं करते, आप चीज़ों को सोचते हैं, तो सोचने का अमल जो है वो शायरी में भी होता है। तो मेरा ये ख़्याल है कि ये चीज़ें आपको मदद देती हैं आपके वो तो तख्लीक़ी सफ़र आपका में। इल्म मुशाहिदा यकीनन उसमें जी। होता है। हाल ही ने कहा है, हाल ही ने एक मिसाल दी है उसके गालिब की शेर की, इस साबिर जम से मेरा जाम जी, जी। सफ़ाल अच्छा है। तो ये उसमें वो कहते हैं कि जब तक आपको ये जाम जम का नहीं जी, पता होगा, साबिर जम का बिल्कुल। नहीं पता होगा, तो आप जी, इसको कैसे शायरी में ला सकते हैं। और मैं जी, बिल्कुल आपकी बात तनकीद में भी मेरा ख्याल है जो फ़लसफ़ा है और वो बहुत फ़लसफ़ी ज़रूरी जो है। है जहाँ अफ़लातून जी, से लेके आगे अरस्तू तक, तो वो उसके जी। अंदर तो यकीनन उनकी अहमियत तनकीद है। में तो ख़ैर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप किसी भी शेरी तकनीक को आप नहीं समझ सकते, जब तक आपके पास वो दीगर उलूम का छोटा-छोटा थोड़ा-सा तारुफ़ ना हो। अच्छा, अब मैं यहाँ एक बात करना चाह रहा था, आपने चूँकि गालिब की बात की, उनकी तारीख़ी शो की, जैसे उन्होंने साबिर जंग का ये टर्म इस्तेमाल की है। अगर हम मॉडर्न पोएट्री की बात करें, जो अंग्रेज़ी जदीद शायरी है या हमारी जो उर्दू की जदीद शायरी है, उसमें हमें बहुत सारे हवाले ऐसे मिलते हैं, जहाँ हमें तारीख़ की तरफ रुजू करना पड़ता है। तारीख़ की तरफ मुख्तलिफ़ पुराने लिटरेचर की तरफ रुजू करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ आपको 2 नज़्मों के हवाले दे देता हूँ, टी.एस. एलियट की 2 नज़्मों के। टी.एस. एलियट की एक नज़्म है द लव सॉन्ग ऑफ जे. अल्फ्रेड प्रूफरॉ, जिसमें वो 2-3 हवाले देते हैं। कहीं पर वो हैमलेट का ज़िक्र कर रहे हैं। जब तक आपने हैमलेट को नहीं पढ़ा, आप उस नज़्म को नहीं समझ सकेंगे, टुकड़े को नहीं समझ सकेंगे नज़्म के। इसी तरह उनकी एक बहुत मशहूर नज़्म है द वेस्टलैंड, जिसके असरात शायद दुनिया के हर अदब पर पड़े होंगे और कहा जाता है। खैर, उस नज़्म में भी उन्होंने जगह-जगह हवाले दिए हैं। जब तक हम उन हवालों को नहीं समझेंगे या हमें बुनियादी इल्म उन हवालों का नहीं होगा, तो हम उस नज़्म को नहीं समझ सकेंगे। तो ये मेरे ख्याल में एक शायर के लिए ज़रूरी है कि वो शायरी के साथ-साथ दीगर उलूम को भी पढ़े। जी। अच्छा, ये बाकी जो है अदब था, किताबें थी आपके घर में, यकीनन उर्दू अदब का वसी जी। ज़ख़ीरा मौजूद है। इसके अलावा बाकी आप क्या समझते हैं कि हल्का अरबाब ज़ौक़ ने भी आपकी अदबी तरबियत में किरदार अदा किया या? बिल्कुल, बिल्कुल हल्कर बाब ज़ौक़ को मैं इस सफ़र से नहीं निकाल सकता, क्योंकि उसका किरदार बहुत अहम है। और बल्कि मेरी ज़िंदगी में नहीं, बल्कि बहुत से नौजवान जो शुअरा साहिवाल में मौजूद हैं, मुझे अच्छी तरह इस बात का इदराक है कि बहुत से नौजवान शायद सबसे पहले उन्होंने हल्के में पढ़ा और बाद में वो काफ़ी मारूफ़ भी हो गए। तो ये है कि हल्के ने बहुत से लोगों की तरबियत की है पिछले 5 साल में, और वो मज़ीद कर रहा है। और मुझे यकीन है कि ये सफ़र जो है हल्के का, ये ये जुलाई में 6 साल हो जी, जाएंगे जी, हल्के जुलाई के। में 6 साल हो जाएँगे, तो बहुत से लोग हैं, नौजवान शुअरा भी, और बहुत से ऐसे तख्लीक़ात जिनको साहिवाल तक में कोई नहीं जानता था, उनको भी मुतारिफ़ करवाने में हल्का बाब ज़ौक़ का बहुत अहम किरदार है। जी, बिल्कुल, ये आपने ठीक कहा है। अच्छा, अंग्रेज़ी अदब और उर्दू अदब के इत्तेसाल से आपकी शायरी में क्या आप क्या समझते हैं कि उससे आपकी शायरी में बिल्कुल। बेहतरी आई है कोई बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि मौज़ूआत बेहतरी आई है। में? क्योंकि मैं सिर्फ़ अंग्रेज़ी अदब से रुजू नहीं करता, मैंने यूनान का अदब भी कुछ मुझे पढ़ने का इत्तेफ़ाक हुआ, उनके ड्रामे और जो उनकी मशहूर नज़्में हैं, उनमें सैफ़ो एक उनकी शायरा हैं, उनकी नज़्में कुछ पढ़ने का इत्तेफ़ाक हुआ। इसी तरह होमर की इलियड और ओडेसी को कुछ ना कुछ देखने का इत्तेफ़ाक हुआ, चूँकि वो तवील नज़्में हैं, तो मैं उनको मुकम्मल नहीं पढ़ सका। अलबत्ता कुछ असरात होते हैं हमारी, जब हम तख्लीक करते हैं तो हमारा मुतालिया उसमें झलकता है।
اب جہاں تک تعلق ہے انگریزی ادب کا، تو ظاہر بات ہے میں انگریزی ادب کا باقاعدہ طالب علم ہوں، اور میں شعوری طور پر بھی کوشش کرتا ہوں کہ اس کے اثرات جو ہیں وہ میری تحریروں میں آئیں، کیونکہ اس سے ایک انسان کا مختلف اسلوب بنتا ہے، موضوعات بھی نئے ملتے ہیں، اس کا اسلوب بھی نیا بنتا ہے، تو میرے خیال میں یہ ضروری ہے۔ صرف انگریزی ادب ہی نہیں، آپ کو فرینچ ادب بھی دیکھنا چاہیے، رشین لٹریچر بھی دیکھنا چاہیے، ایون ہمارے جو سب سے قریبی ادب ہیں اردو کے، فارسی اور عربی، ان کی شاعری کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے، خاص طور پر عربی شاعری کا مطالعہ، جدید عربی شاعری کا بہت ضروری ہے۔ اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک عمومی تاثر یقیناً اس طرف جاتا ہے، جیسے آپ کے بابا شعر کہہ جی رہے ہیں، تنقید تحقیق اور ساری چیزوں میں کہتے ہیں، تو آپ جیسے نوجوان کے جب نئے نئے شعر آئیں تو ایک خیال جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ والد نے اس میں ان کو ٹھیک کیا اور درست کیا ہو، یا والد کا ہاتھ اس کے پیچھے نہیں نظر نہیں، آتا بالکل ہے۔ ایسا حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ ہاں شاید جی ان کو اپنی شاعری دکھاتے بھی نہیں ہیں، جی تو یہ آپ کی گفتگو سے تو اندازہ ہو جاتا ہے، جب آپ شروع میں تاثر جاتا ہے، جی، یقیناً اس طرح ظاہر جاتا بات ہے ہے وہ کہ اتنی فطری سی ہے۔ عمر میں اتنے جی، اچھے شعر کیسے کہہ سکتا یہ ہے۔ تعصب کا تعصب کا ہونا یہ فطری ہے، یہ ہوتا ہے، اور میرے خیال میں کوئی بھی نیا شاعر جب منظر عام پر آتا ہے اور وہ اچھا شعر کہتا ہے، تو ہمارا سب سے پہلے خیال یہی جاتا ہے کہ یہ کوئی اس کو لکھ کر تو نہیں دیتا، خاص طور پر شاعرات کے بارے میں یہ بات بہت زیادہ میرے خیال میں تو مسکنسیپشن ہے۔ اچھا، اس حوالے سے مجھے دو تین لوگوں نے بتایا بھی کہ کچھ لوگ میرے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں، ظاہر بات ہے ایسا ہونا فطری ہے، اور میں اس چیز کو برا نہیں سمجھتا، البتہ مجھے اتنا اندازہ ہے کہ جب کوئی گفتگو مجھ سے کرتا ہے، تو اس کا یہ جو نظریہ ہے، یہ خیال ہے، وہ میرے خیال میں مختلف ہو جاتا ہے۔ آپ کے انٹرویو کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آپ کے شعر تو ہم سنتے جی رہتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہلکے کی تنقیدی اجلاسوں میں جو آپ کی گفتگو ہم سنتے ہیں، تو وہ تو ایک عام لوگوں کو اب جی آپ کا پتہ ہے، ایک تعارف ہے آپ کا، ماشاءاللہ۔ تو ہم چاہ رہے تھے کہ آپ کی گفتگو سے جو ہے باقی نہیں، جو میں تو ایک طالب علم ہوں، اور مجھے اندازہ ہے کہ میں ابھی اس مقام پر نہیں گفتگو کر سکوں، البتہ یہ تو آپ نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں کچھ نہیں، نہ کچھ کہہ ہمیں سکوں۔ ہونا چاہیے، ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا ہمارے جو نئے نوجوان جی لکھنے والے ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان جو ہے نئے نئے موضوعات لے کے آئے ہیں، بالکل یہ شاعری کے اندر جو ہے بڑا ضروری خوشامد ہے۔ ہے۔ تو اس کے علاوہ آپ جو ہے آپ سے ہم نظم بھی سنیں گے اور آپ کی غزل بھی جی، سنیں گے، شاعری بھی سنیں گے، تو اس میں سے آپ غزل اور نظم دونوں میں سے کسی بھی میں آپ کو غزل کے چند اشعار پیش کر دیتا ہوں آپ کے سامنے، اور پھر نظم بھی، چونکہ زیادہ نظم یاد نہیں ہے، آپ البتہ اس سے یہ سوال ایک بنتا ہے کہ آپ کے دل کے قریب نظم ہے یا غزل ہے؟ میرے دل کے قریب دونوں ہی ہیں، جب میرا دل نظم لکھنے کا کرتا ہے تو میں نظم لکھتا ہوں، جب غزل کہنے کا کرتا ہے تو میں غزل کہتا ہوں، لیکن کبھی کبھی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ نظم مجھے زیادہ پسند ہے۔ بالکل، شاعری یا جی، جو ادب ہوتا ہے وہ اولاد کی چونکہ طرح ہی اس کی ہوتا وجہ ہے، یہ اولاد میں بھی کوئی زیادہ پیارا بالکل، ہوتا ہے، کوئی ہاں جی، ذرا اس کی وجہ یہ ہے نظم کو زیادہ پسند کرنے کی، کہ نظم میں آپ کے پاس گنجائش زیادہ ہوتی ہے، آپ وہ کہہ سکتے ہیں جو آپ کہنا چاہتے ہیں، جبکہ غزل میں آپ میرے خیال میں محدود ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی آپ کو قافیہ ردیف بھی لے کر چلتے ہیں، آپ کے خیالات کو جو آپ کہنا چاہتے ہیں وہ آپ نہیں کہہ پاتے، جبکہ نظم میں آپ کے پاس زیادہ اختیار ہوتا ہے کہ آپ خیالات کو اس طرف لے چلیں جہاں آپ لے جانا چاہتے ہیں، تو میں نظم کو زیادہ پریفر کرتا ہوں جب میں وہ کہنا چاہتا ہوں، لیکن غزل بھی اس کو میں یہ نہیں کہتا کہ وہ مجھے پسند نہیں، بلکہ بہت زیادہ پسند ہے غزل بھی، لیکن نظم زیادہ۔ تو آپ غزل پہلے کی نظم کچھ سنیں شاعری، گے جی یا نظم غزل؟ سنا دیتا ہوں پہلے۔ تو نظم کا عنوان ہے صبح کی پہلی کرن۔ صبح کی پہلی کرن، شام اتری آسماں کی سیڑھیوں سے تو تیری یاد آئی، صبح کی پہلی کرن، دیکھ میری ذات کے تاریک بن میں کس قدر تنہائی ہے، صبح کی پہلی کرن، باغ نادیدہ سے یوں گمنامیوں کے پھول چننا چھوڑ دے، گیلی گیلی سب سی اس گھاس پر یوں ٹہلنا چھوڑ دے، رات کا در توڑ دے، صبح کی پہلی کرن، جلدی جلدی آسماں کی سیڑھیاں نیچے اتر، اور میری ذات کے تاریک بن کی سیر کر، ڈھونڈ اس تاریک بن میں شادمانی کا ہرن، صبح کی پہلی کرن۔
बड़ी खूबसूरत नज़्म है, और नज़्म सुनने के लिए भी एक ख़ास मेरा ख़्याल हाँ है जी, ज़ौक़ की ज़रूरत नज़्म है। हर जगह पे जी, नज़्म ज़ाहिर बात है, बिल्कुल सुनाई भी ऐसे नहीं जा सकती। तो एक आपने तराजम भी किए हैं, बिल्कुल तराजम फ़लस्तीनी जी। अदब के हवाले से आपकी एक नज़्म थी, फ़लस्तीन अगर आप जी, ये फ़लस्तीनी बयान करें। हवाले उनके शायरी में भी मैंने तराजम किए हैं कुछ नज़्मों के। उसके अलावा अंग्रेज़ी अदब की कुछ नज़्मों के तराजम किए हैं। फिर अफ़्रीकन नज़्मों के भी 2-3 तराजम करने का इत्तेफ़ाक हुआ है। तो ये बाकी दीगर ज़बानों से अंग्रेज़ी से नहीं, जी अंग्रेज़ी से। ज़ाहिर बात है मैं मुख्तलिफ़ ज़ुबानें तो नहीं जानता, लेकिन अंग्रेज़ी चूँकि एक ऐसा मीडियम है जिसमें आपको हर ज़ुबान की शायरी मिल जाती है। और ये मंज़ूम तर्जुमे हैं। मंज़ूम तर्जुमे हैं, जी, मंज़ूम तर्जुमे। ये बड़ी अच्छी तो चीज़ है, लेकिन ये तो तर्जमा दर तर्जमा है, तो आप क्या समझते हैं कि इंसाफ हो पाता है इससे? ज़ाहिर बात है इंसाफ उस तरह तो नहीं हो पाएगा और मैं तो समझता हूँ तर्जुमा आप तर्जुमा दर तर्जुमा के अलावा भी सिर्फ तर्जुमा भी हो तो इंसाफ नहीं हो पाता। यानी जो एक कैफियत उस खास ज़ुबान में होती है, उस खास लफ्ज़ में होती है, उसका मुतबादिल लफ्ज़ बहुत मुश्किल होता है लेकिन ढूँढना मैंने किसी को। देखा है तराजम में भी आप बड़ी खूबसूरत चीज़ें आपने पेश की हैं। कोई अगर आपके ज़हन में आ रही हो, ख़ास तौर पे मैं चाहूँगा फ़लस्तीन के हवाले से जो एक छोटी-सी नज़्म थी वो एक नज़्म है अगर मुझे याद रह जाए तो क्योंकि तराजम भी याद तो उस तरह नहीं रहते, लेकिन वो नज़्म का उन्वान है सफ़र का टिकट। और समीर उल कासिम शायर हैं फ़लस्तीन के, उनकी वो नज़्म है तो उनका तर्जुमा मैंने किया था। तो नज़्म कुछ इस तरह से है कि मेरे कातिल जब मुझे तुम कत्ल कर दोगे तो मेरी जेब से तुमको मिलेंगे कुछ टिकट। एक ऐसे सफ़र के जिसकी मंजिल अमन होगी, जिसकी मंजिल खेत और बरसात होंगी और लोगों के ज़मीरों की सड़क। मेरे कातिल तुम वो टिकटें रायगा मत जाने देना, मेरे कातिल तुम वो टिकटें रायगा मत जाने देना। तो मुमकिन है इसमें मैंने कोई गलती कर दी है, चूँकि तर्जुमा उस तरह से याद नहीं रहता। बड़ी बड़ी खूबसूरत जी। नज़्म है, हमने और भी आपसे तराजम सुन रखे हैं। तो अब आप आखिर में हमें जो है गज़ल के मैं कुछ अशआर आपके सामने पेश कर देता हूँ। ताज़ा गज़ल ही है और चमन चमन तेरी मौजूदगी का फूल खिला, चमन चमन तेरी मौजूदगी का फूल खिला, किनारे ज़ात पे शोरीदगी का फूल खिला। चमन चमन तेरी मौजूदगी का फूल खिला, किनारे ज़ात पे शोरीदगी का फूल खिला। तमाम शाखों पे खिलने लगे जो ताज़ा गुलाब, तमाम शाखों पे खिलने लगे जो ताज़ा गुलाब, मेरे वजूद में अफसरदगी का फूल खिला। तमाम शाखों पे खिलने लगे जो ताज़ा गुलाब, मेरे वजूद में अफसरदगी का फूल खिला। क्या रदीफ और क्या बहुत काफ़िया शुक्रिया। है। तमाम शाखों पे खिलने लगे जो ताज़ा गुलाब, मेरे वजूद में अफसरदगी का फूल खिला। जहाँ जहाँ तेरी आंखें पलट गईं मुझसे, जहाँ जहाँ तेरी आंखें पलट गईं मुझसे, वहाँ वहाँ मेरी बेचेहरगी का फूल खिला। क्या जहाँ जहाँ तेरी बेचैनी आंखें पलट गईं मुझसे, वहाँ वहाँ मेरी बेचेहरगी का फूल खिला। ये दिल ये नूर की बारिश में भीगता, ये दिल ये नूर की बारिश में भीगता, ये दिल तुम्हारे बाद यहाँ तीरगी का फूल खिला। बहुत शुक्रिया, ये कुछ अशआर थे। कोई और अगर दो तीन शेर, जी मुझे आपकी बिल्कुल। एक गज़ल खास तौर पे बहुत पसंद है, वो हमने शीरा टी स्टॉल पे आपसे सुनी थी, अगर आपको कोई हाँ ज़हन जी में हो। बिल्कुल मुझे याद आ गया और मैं वो सुना देता हूँ, कुछ अशआर मेरे ज़हन में हैं। बस खानाए वजूद में तेरी कमी रही, बस खानाए वजूद में तेरी कमी रही, तन्हाई खिड़कियों से मुझे झांकती रही। बस खानाए वजूद में तेरी कमी रही, तन्हाई खिड़कियों से मुझे झांकती रही। बस खानाए वजूद में तेरी कमी रही, तन्हाई खिड़कियों से मुझे झांकती रही। यादों के दर से कितने फसाने पलट गए, यादों के दर से कितने फसाने पलट गए। हाँ एक शाम थी जो मुसलसल खड़ी रही, यादों के दर से कितने फसाने पलट गए। हाँ एक शाम थी जो मुसलसल खड़ी रही, दिल में तुम्हारे बाद कोई आ नहीं सका, जो चीज़ जिस जगह पे पड़ी थी पड़ी रही। चलें, मेरे लिए बहुत अच्छा लगा, आप तशरीफ़ बहुत लाए और शुक्रिया। बड़े गुफ्तगू करके बड़ा अच्छा लगा। तो ये थे मेरे अली, हम मिलेंगे आपसे किसी और नए शायर, किसी नए और अदीब के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।